डिटेक्टिव कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। एडगर लिखित ये कहानी देख लीजिए, पसंद आएगी। The purloined letter. About a month later, the prefect paid us another visit. Well, prefect, what about the purloined letter? Did you find it? No, confound it. Although I followed Dupont's advice and searched Minister D's rooms again, it was wasted time, as I knew it would be. How much was the reward offered, did you say? Why, quite a lot. I hesitate to say exactly how much, but it's big enough that I would gladly write a check in the amount of 50,000 francs to anyone who could give me the letter. In that case, get out your checkbook. When you have signed a check to me for that amount, I will give you the letter. I was astounded. The prefect was absolutely thunderstruck. He stared silently at my friend, then took out his checkbook, wrote a check for 50,000 francs, and handed it to Dupont. My friend studied it carefully for a moment, slipped it into his pocketbook, then unlocked his desk drawer. He took out a letter and handed it to the prefect. But how? Then without another word, the prefect rushed out of our rooms with the letter. The police are very able in their way. Unfortunately, they are no brighter or stupider than the common mass of people. Their investigations often fail when they encounter a criminal smarter than they are, and often when they deal with criminals who are not as smart. But they conducted a thorough search. Of course, but they searched in places where they themselves might have hidden the letter. They did not think that Minister D, who is no fool, would anticipate that his rooms would be searched. Of course, he would never hide the letter behind a mirror or in a hollow table leg, because if he did, it would certainly be found. He would choose a simpler place to hide it. In fact, he would choose not to hide it at all. I think I understand your reasoning. But how did you manage to get hold of the letter? It was simple. I took it. Dupont told me how he paid a visit to Minister D himself. Why, hello, Dupont. What brings you to my rooms? I was in the neighborhood and thought I would stop in for a chat. Come in, my friend. It is good to see you. But why are you wearing dark glasses? My eyes are tired, and the light bothers them. Dupont actually wore the glasses so that his eyes could wander around the room without Minister D's suspecting. It did not take long for Dupont to find what he was looking for. His eyes soon fell on a cheap card rack which dangled from a dirty blue ribbon above the fireplace mantel. In the rack, plain to see, was a letter. Unlike the purloined letter, it was dirty and crumpled, with a woman's handwriting on the outside. Dupont stayed for a while, chatting with the minister. Thank you for seeing me, sir. I have enjoyed our chat. So have I. Please feel free to call again. Dupont left the room. Dupont, wait! The fool! He left his snuff box behind. The next day, Dupont returned to the rooms of Minister D. I'm sorry to trouble you, my friend. I forgot something yesterday. Your snuff box! Here it is. What is that? A sound like gunfire cracked through the air, followed by screams. Minister D rushed to the window. As Minister D looked out the window, Dupont walked over to the mantel, took the ragged letter from the rack and replaced it with an exact duplicate he had made. It is nothing. Some prankster burst a balloon. Well, Dupont, will you stay to chat? I'm afraid not, my friend. I have what I came for. Dupont smiled with satisfaction as he told me his story. Of course, the prankster with the balloon was an agent I had hired to distract the minister. But the letter you took looked nothing like the Queen's letter. Hers was neat and addressed in a man's hand. The letter in the rack was ragged, covered with dirt, and addressed by a woman. Of course, it was so unlike the Queen's letter in every detail that I knew it must be a fake. When I got it back here, I found the Queen's letter wrapped up inside the false letter. Does Minister D know he has been had? I doubt it. The copy I made of his letter is perfect. He has no reason to open it up, not until the Queen defies him. When that happens, he is in for a rude surprise. Oh yes. What did you say in the letter you left? Oh, just a personal message. Something along the lines that scoundrels can hide in plain sight, but not forever.
स्टोरी बहुत अच्छी थी ना, समझ में नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं, मैं तुमको हिंदी में वही कहानी सुना देती हूँ। एडगर पो जो है ये चुराया हुआ लेटर, ये स्टोरी उन्होंने लिखी है। ये डिटेक्टिव स्टोरी है। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस ऑफिसर जो है एक मन से एक लेटर को देख रहा है। वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा है लेकिन नहीं मिल रहा। तो ये दोनों जो बैठे हैं, इसमें से जो ब्लू कलर की ड्रेस वाला जो आदमी है वो एक डिटेक्टिव है और दूसरा भी है, उसका फ्रेंड है। तो ये डिटेक्टिव के पास आया है और वो बोलता है कि मुझे एक लेटर की बहुत, मैं परेशान हूँ, एक लेटर की मुझे बहुत ज़रूरत है और मुझे कोई भी हालत में उस लेटर को चाहिए, उसके लिए मैं कितना भी पैसा देने के लिए रेडी हूँ। जो मिनिस्टर डीज नाम का जो आदमी है उसने ये चोरी की है, लेकिन उसके घर का मैंने बहुत दिनों से 2-3 बार जाके चेक किया, हर मंथ में जाके चेक करता हूँ। 2-3 महीने से मैं पागल हो गया हूँ और जो यंग रॉयल लेडी है वो मुझे पूरी पागल कर रही है। तो ये डिटेक्टिव बोलता है अगर ये लेटर मैं तुमको अभी दूँ तो तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो। तो सबसे पहले तो वो पुलिस वाला बहुत सोचता है और रकम बहुत बड़ी है, फिर भी वो बोलता है कि अगर वो लेटर मुझे कोई भी ला के देगा तो मैं उसे 50,000 जो चेक है उसके वो चेक दे दूंगा और वो अमाउंट उसमें लिख के दूंगा। तो 50,000 फ्रांस की जो कीमत है वो उसे मिलेगी उस लेटर के बदले में। तो ये ड्यूपिन जो है ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, चेक बुक निकालो और चेक लिखो और मुझे अमाउंट वो दे दो, क्योंकि मैं अब तुम्हें जल्दी ही वो लेटर देने वाला हूँ। तो सरप्राइज़ होके वो फ्रेंड भी उसकी तरफ देखता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो पुलिस वाला भी एकदम झटका बैठने जैसा, वो सरप्राइज़ हो जाता है कि जिस लेटर को मैं इतना देर से ढूंढ रहा हूँ ये इसके पास कैसे आ गया। तो फिर भी वो साइलेंटली अपने पॉकेट में से चेक बुक निकालता है, 50,000 फ्रांस जो कीमत है वो लिख देता है उस चेक के ऊपर और वो हैंड ओवर कर देता है ड्यूपिन्स को। ड्यूपिन कौन है? तो एक डिटेक्टिव है और उसका फ्रेंड जो है, ये फ्रेंड एक डिटेक्टिव है। तो ये अच्छे से वो पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद वो अपने पॉकेट में रख देता है। बाद में अपने ड्रॉवर को खोलता है और ड्रॉवर में से एक लेटर जो है वो बाहर निकालता है, वो उसको हैंड ओवर कर देता है। तो वो उसे देखता है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? पर जाने दो, मुझे क्या करना है। वो खोलता है, देखता है और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो लेटर के लिए बहुत परेशान है। जो रॉयल लेडी है वो उसे पागल करके छोड़ दी है। अब ये पुलिस वाला जो है, ये पुलिस वाला ऐसे कैसे इतना जल्दी उसको लेटर को लेके भाग गया? तो ये जो डिटेक्टिव है ये बोलता है कि देखो, हम लोग पुलिस वाले को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ब्राइटर समझते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, वो हमारे जैसे कॉमन ही होते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें कभी कभी वो फेल हो जाते हैं, कभी कभी उनको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए क्रिमिनल से हाथ मिलाने पड़ते हैं। कभी कभी तो क्रिमिनल जो बिल्कुल उनसे स्मार्ट नहीं होता है, वो कभी कभी ऐसी स्मार्ट चीज़ें कर जाता है कि जिसको पुलिस को शक भी नहीं आता है। तो कभी कभी उन लोगों को उनकी मदद लेके अपना कारागिरी दिखाना पड़ता है। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। देखो ये लेटर मेरे पास कैसे आया, ये इतना पैसा मैंने अभी 1 मिनट में कमा लिया, इसके बारे में तुमको बहुत डाउट होगा। तो मैं बताता हूँ कि ये जो मिनिस्टर डी जो है ये इनके पास था, और ये जो है एक पागल आदमी है। पागल आदमी है मतलब सरफिरा नहीं है। ये इसने क्या किया था, जो रॉयल लेडी है उसके घर में जाके इसने ये लेटर वहाँ से चुरा लिया था और उसने फिर वो टेबल यहाँ वहाँ ऐसे वो छुपा छुपा के अलग अलग जगह पे वो रखता था, इसीलिए इसे मिला, इसको इस पुलिस वाले को ये बिल्कुल मिला नहीं था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब मुझे पता चला था कि मिनिस्टर डी जो है इनके ही घर में ये लेटर है जो रॉयल लेडी ने लिखा था। रॉयल लेडी ने जो लेटर लिखा था वो एक्चुअली बहुत पर्सनल था, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो अपनी जो लेटर है उसने मिनिस्टर डी जो है वो चुरा रहा था, उसने वो देख लिया था, लेकिन वो उस टाइम पे उसको रोक नहीं पाई थी। और ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो ड्यूपिन्स जो है ये अब मतलब एक्चुअली जब ये उनके घर विज़िट करने गए थे डिफेंस, तो उस टाइम पे मिनिस्टर डी के साथ बातें कर रहे थे और वो टाइम पे उसने क्या किया कि मिनिस्टर डी की जो रूम है
वो देखने की ऐसी कि हाँ बहुत अच्छी रूम है, मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे कुछ बातें करते रहे। तभी उन्होंने क्या किया, खिड़की खुली थी और खिड़की में से उन्होंने अपने ही जो एक कोई और फ्रेंड था उसे बता के रखा था कि बाहर ऐसी कुछ चीज़ें करना है कि जिससे मिनिस्टर बाहर देखने लगे और तभी ये आसानी से वो लेटर चुरा ले। तभी उन्होंने क्या किया कि एक जो ग्लास था, मतलब चश्मा पहना था, वो ब्लैक कलर का पहना था और वो इधर उधर सारी जगह पे बातें कर रहे थे, देख रहे थे। लेकिन ये जब देख रहे थे तब मिनिस्टर डी बिल्कुल सस्पेक्ट नहीं कर सका था, लेकिन फिर भी उसे शक तो आ गया था कि ये इतना देर से यहाँ पे क्यों रुका है और ये क्या देख रहा है, ये क्या देखना चाहता है, ये क्या सर्च कर रहा है। तो फिर उनकी नज़र एक ऐसे बॉक्स पे पड़ी जिसके अंदर जो फायर मेंटल होता है, मतलब जलाने वाली, तो उसमें तो ऐसे तो लेटर के जैसे ऐसे उसे कुछ मिल दिख रहा था और उसे शक आ गया था ड्यूपिन को कि यही वो चुराया वाला लेटर होगा जो लॉयल लेडी ने लिखा था। लेकिन वो बहुत डर्टी हो गया था और ऐसे लग रहा था कि तो उसने वो देखने की कोशिश की। लेकिन अब ड्यूपिन को तो लेना था, लेकिन मिनिस्टर डी तो वहाँ पे खड़ा था, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन पूरी की पूरी नज़र जो थी उस लेटर पे ही थी। अब एक दूसरे से बातें करते हुए थोड़ा मिनिस्टर जो था, मिनिस्टर डी, ये थोड़े कंफर्टेबल फ्री हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाँ ठीक है, मतलब कोई बात नहीं है, ये बातें करने आया था। और जब एक्चुअली उसको पता ही नहीं था, नेक्स्ट डे फिर से ड्यूपिन उनके घर में रिटर्न आ गए। अब एक्चुअली उनको पता था ड्यूपिन को कि कहाँ पे रखे हैं, अब जो लेटर है वो कहाँ पे रखा है, लेकिन उन्होंने उस दिन खाली देख लिया था, चुराया नहीं था। अब इस दिन उन्होंने क्या किया, वो फिर से ड्यूपिन मिनिस्टर के साथ बातें करने लगे। मिनिस्टर को इस बार बिल्कुल शक नहीं आया, वो जैसे कि बातें करते रहते हैं वैसे ही बातें करते रहे और तभी उनको थोड़ा सा साउंड सुनाई दिया। जैसे उनका साउंड सुनाई दिया वैसे मिनिस्टर खिड़की में से देखने के लिए चले गए और जब तक वो खिड़की में से वहाँ पे झांक रहे थे तभी इधर जो ड्यूपिन थे, वो ड्यूपिन ने अपना काम कर लिया था। उन्होंने अपने पॉकेट में से एक दूसरा लेटर निकाल लिया, वो उधर रख दिया और जो रियल लेटर था वो उन्होंने वहाँ से निकाल लिया। मतलब शक भी नहीं आना चाहिए, सेम जैसे वो था वैसे ही डुप्लीकेट उसने रख दिया। अब मिनिस्टर डी जो है इनके साथ फिर से बातें करने लगा और बोलने लगे कि अरे कोई बदमाश बच्चे बाहर आवाज़ कर रहे थे और कुछ नहीं। और फिर बातें करते हुए उन्होंने फिर से एक दूसरे को पूछना शुरू कर दिया कि मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं है कि जो ये आवारा बच्चे जो बाहर कुछ कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। और थोड़ी बातें करने के बाद वो वहाँ से निकल आए और फिर वो अपने फ्रेंड को बता रहे थे कि देखो इतनी छोटा सा काम के लिए मैंने आज यहाँ पे बैठे बैठे इतनी सारी चीज़ें कमा ली। एक्चुअली तुम्हें बताओ कि वो जो बाहर दंगा मस्ती करने वाले जो बच्चे थे बलून के साथ, वो मैंने ही भेजे थे, इसलिए भेजे थे कि वो लेटर मैं जब निकालूँ वहाँ पे दूसरा लेटर रखूँ, मिनिस्टर को शक भी नहीं आना चाहिए और कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए उसका ध्यान बटाने के लिए ये सब चीज़ें मैंने की थी। तो सामने बैठे हुआ जो दोस्त है वो बोलता है कि अरे पर वो जो लेटर है वो तो गंदा था, ऐसे किसी मतलब रॉयल लेडी ने लिखा हुआ ऐसे तो लग नहीं रहा था। चलो ठीक है, चलो जाने दो, अब ये क्वीन ने अगर लेटर लिखा था, रॉयल लेडी ने लिखा था, तो इसमें कुछ तो बहुत ही हार्मफुल, नहीं तो कुछ तो होगा। तो वो बोलते हैं कि ड्यूपिन जो है ये बताती है अरे कुछ नहीं था उसमें, इतनी भी एकदम हार्म करने वाली बात नहीं थी। और लेडी होती है, उसमें क्या है, वो रानी हो या कोई भी हो, वो जो लेटर है वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ गया था, इसलिए वो वैसे हो गया, डर्टी हो गया होगा। लेकिन बाद में जो मिनिस्टर डी है इनको डाउट नहीं आया क्या, ऐसे उनके दोस्त ने पूछा। तो ये बोले कि अरे वो मैंने तुमको पहले ही बताया ना कि मिनिस्टर डी जो है ये इतना भी शातिर दिमाग वाला नहीं है, उसको कैसे शक आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैसे ही कलर का वैसे ही डर्टी सा लेटर वहाँ पे रख दिया था। एक्चुअली मिनिस्टर डी के पास जो लेटर है अगर वो उस रानी को देगे तो भी उसे पता नहीं चलेगा कि वो डुप्लीकेट है करके। और बाद में फिर वो बताने लगे कि उसमें ऐसे पर्सनल मैसेजेस थे कि कुछ एक दो लाइंस थी
और उस लाइन में ऐसे ही लिखा था कि हम लोग जो हमें फंसाने वाले लोग होते हैं हम उन्हें जल्दी से मतलब देख सकते हैं और पर पहचान नहीं सकते। तो ये मेरी स्टोरी आप लोगों को अगर बहुत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद हूँ। ऐसे ही देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।